اور شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے۔ ریاستی تحقیقاتی ادارے نے ضلع ڈوڈا سے مزید 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گرد فردوس احمد وانی اور خورشید احمد ملک کو جموں کے ڈوڈا ضلع سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں جموں اور ڈوڈا سے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ دہشت گرد کئی دہائیوں سے قانون کی گرفت سے بچ رہے تھے اور چھپ کر زندگی گزار رہے تھے۔ ڈوڈا پولیس نے UAPA ایکٹ کے تحت پاکستان سے کام کرنے والے ڈوڈا کے LET-HM کمانڈر سمیت 8 اعلیٰ درجے کے دہشت گردوں پر چارج شیٹ داخل کیا۔ سیکشن 299 CRPC کے تحت چارج شیٹ داخل کی گئی۔ یہ دہشت گرد وہ اس وقت POK سے کام کر رہے ہیں اور ضلع ڈوڈا اور صوبہ جموں کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کو زندہ رکھنے کے لیے دہشت گردی کا مڈول چلا رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن ٹھاٹری میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ درجے کے دہشت گرد محمد امین، HM دہشت گرد ذاکر حسین، لشکر طیبہ کے دہشت گرد عبدالحائد علی درجے کے دہشت گرد محمد حسین خطیب، HM دہشت گرد عطا محمد، محمد شفیع، ماجد حسین، ابو جہاد پر چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ ان دہشت گردوں کے خلاف ضلع ڈوڈا میں دہشت گردی کا مڈول چلانے کے لیے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان دہشت گردوں کے خلاف کافی ثبوت جمع کرنے کے بعد بالآخر ان کے خلاف فاسٹ ٹریک NIA کورٹ ڈوڈا میں عدالتی فیصلے کے لیے چارج شیٹ داخل کی گئی ہے۔ یہ دہشت گرد اس ضلع کے مقامی نوجوانوں کو دہشت گردی کو زندہ رکھنے کے لیے تخریبی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے دہشت گردی کے گروہ میں شامل ہونے کی طرف راغب ہونے کی مسلسل کوشش میں تھے۔ دفعہ 370 معاملے پر سماعت انتہائی اہم مرحلے پر پہنچ گئی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 5 ججوں کی آئینی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے۔ آج 14ویں روز کی سماعت مکمل ہوئی۔ آج سینئر وکیل راکیش دویدی 370 کو ہٹانے کی دلیل پیش کر رہے تھے۔ اس معاملے پر اگلی سماعت 4 ستمبر کو ہوگی۔ کل سماعت کے دوران جموں کشمیر میں انتخابات کے معاملے میں مرکزی حکومت کی جانب سے SG نے کہا تھا کہ حکومت کسی بھی وقت جموں کشمیر میں انتخابات کروا سکتی ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ ووٹر لسٹ تقریباً تیار ہے۔ انتخابات کب ہوگے اس بات کا فیصلہ ریاستی الیکشن کمیشن اور مرکزی الیکشن کمیشن کریں گے۔ مرکزی حکومت نے کہا کہ پہلی بار جموں کشمیر میں 3 سطحی پنچایتی راج نظام نافذ کیا گیا ہے۔ پہلا انتخاب پنچایت کے لیے ہوگا۔ تشار مہتا نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجے کی بحالی کے لیے وقت لگے گا۔ حکومت ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ٹائم لائن دینے سے قاصر ہے۔ UT کا درجہ عارضی ہے۔ سینئر سوشو پولیٹیکل کارکن عمران امین شاہ کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کو لے کر سپریم کورٹ کا فیصلہ لوگوں کے لیے موافق ہوگا اور انہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے اور انتخابات منعقد کرانے میں بھی کلیدی رول ادا کرے گا۔ اننت ناگ کے شیرپورہ علاقے میں ایک سیاسی میٹنگ میں شرکت کے بعد عمران شاہ نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے سیاسی کارکنان پر زور دیا کہ جموں کشمیر میں روایتی سیاست میں بدلاؤ لانے کے لیے انفرادی سطح کی پہل کی جائے تاکہ ماضی کے سیاسی پہلو میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اس موقع پر کئی سیاسی کارکنان نے عمران شاہ کو حمایت دینے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ ملک کا بہت بڑا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہاں پہ اسٹیٹ ہولڈ دیا جائے واپس تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہم بلدیاتی الیکشن اور پنچایتی الیکشن کے لیے پوری طرح اپنے جو ورکر ہیں، ہمارے ساتھی جو ہے گراؤنڈ لیول میں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن بنا رہے ہیں۔ اور آج ہم نے یہاں پہ جو وارڈ پریزیڈنٹ ہے یہ محمد یعقوب خان صاحب، ان کے گھر میں ہم نے میٹنگ کی اور یہاں کا جو یوتھ ہے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کی اور ان کو سمجھایا کہ آنے والے الیکشن میں کس طرح متحرک ہو اور کس طرح ہم کامیابی حاصل۔ مرکزی حکومت نے ون نیشن ون الیکشن پر ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کریں گے۔ کمیٹی کا مقصد ون نیشن ون الیکشن کے تصویر پر عمل درآمد کی فیزیبلٹی کی چھان بین کرنا ہے۔ مرکز کے اس اقدام پر سیاسی بیان بازی تیز ہو گئی ہے۔
जम्मू में कांग्रेस का पार्टी कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कांग्रेस सदर की मौजूदगी में सैकड़ों खवातीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी तमाम खवातीन का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है कि कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने स्मार्ट मीटर और सरू टूर प्लाजा के मसले को जल्द हल करने की मांग की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स का अवाम मुखालिफ इकदाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्रांसपोर्टर्स के चक्का जाम हड़ताल की हिमायत कर रही है। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए वकार रसूल वानी ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि रियासत का दर्जा बहाल हो और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो ताकि अवाम को राहत मिल सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अदालत में लेकर इंतखाबात की तारीख के बारे में पूछे। वकार रसूल वानी का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो आम लोगों के मसाइल को हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीडीपी और एनसी इत्तेहाद का हिस्सा है। सीटों की तकसीम का अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी इंडिया के इत्तेहाद से खौफजदा नजर आ रही है। देखा होगा पिछले 2-3 साल से हम पार्लियामेंट के अंदर जब क्वेश्चन हमारे ऑनरेबल एमपीज डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, तो सेम बयान सेम भाषा सरकार की यही होती है पार्लियामेंट के अंदर भी कि जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा हम तो तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन उनके इन्फ्लुएंस में है, इलेक्शन कमीशन उनका चमचा है, जो चाहे वो उनसे करवाता है। ये सारा गुमराहकुन बयान है। मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को कोर्ट में बुला के फिक्स डेट देना चाहिए कि हमको भैया फिक्स डेट दे दो, कब इलेक्शन होगा। 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। अब मुझे बताओ, वोटर स्लिपें, वोटर लिस्टें 2-2, 3-3 साल से बन रही हैं। कल भी इन्होंने कहा कोई वोटर स्लिपें बन रही है। सारा कुछ गुमराहकुन बयान है। इनको इलेक्शन यहां करना नहीं है। इन्होंने इमरजेंसी लगा के रखी है कश्मीर में। 2014 में इलेक्शन हुए हैं, अब नवंबर में 10वां साल चढ़ेगा। अब मुझे बताओ, ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका है कि आप एक स्टेट को यूटी बना के और उसको ना स्टेट वापस दे रहे हो ना वहां इलेक्शन कर रहे हो। वही स्टेट के लिए भी बयान था कि हम स्टेट वापस दे रहे हैं। भाई कब दे रहे हो यार? हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को आपने, स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट को आपने यूटी बनाया, 2 हिस्से किए, कब दे रहे हो? टाइम फिक्स तो बताओ। 6 महीने के बाद दे रहे हो, 3 महीने के बाद दे रहे हो। झूठ बोल रहे हैं ये कोई ना इलेक्शन करेंगे ना स्टेट वापस देंगे। इंडिया अलायंस की कंटिन्यूअसली मीटिंग चल रही है। नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि उसकी कुर्सी खत्म हो चुकी है, उसकी कुर्सी जाने वाली है। वो यही मिसाल होती है, जब एक भालू जख्मी होता है तो वो उस जख्म में घास भरता है। ये सेम वही पोजीशन है, लेकिन उससे भरने से कुछ नहीं होगा। ये हुकूमत जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। इंडिया अलायंस आएगा, जो गरीबों की हुकूमत होगी, जो लोगों के सुख के लिए काम करेगी, लोगों के दुख के लिए काम नहीं करेगी। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं क्योंकि अल्ताफ बुखारी 1999 में सियासत में आए थे तो 1980 में एमएलए को खरीदने में उनका किरदार कैसा था। उन्होंने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने पर हैरत का इज़हार किया। मुंतजिर मोहिद्दीन ने उन्हें तारीख पढ़ने और खुद को दुरुस्त करने का मशवरा दिया। बात है कि आजकल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो लोग आते हैं मामलात पे, सियासी मामलात पर बात करने के लिए जिनको तवारीख की कोई जान और मालूमियत, न जान पहचान है न मालूमियत है, या शायद मालूमियत अगर होगी भी तो याददाश्त उनकी बिल्कुल कमज़ोर है। जिस दौर की वो बात कर रहे हैं उस दौर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी वजूद में नहीं आई थी। ये 1980 की बात कर रहे हैं और उसके 83 की बात कर रहे हैं। उस दौर में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं बनी थी। उस वक्त आन जहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने वो एमएलएज की परचेजिंग की और डॉक्टर फारूक की हुकूमत गिर गई, उसके घर वालों ने गिराई। उनके जीजा जी थे आन जहानी गुलाम मोहम्मद शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके जरिए तो कांग्रेस हुई थी। तो अल्ताफ साहब या अल्ताफ साहब के वालिद साहब का उन अयाम में सियासत के साथ कोई वाबस्ता ही नहीं था, वो अपना बिजनेस कर रहे थे। तो वो कहाँ, क्या वो किसी सियासी मैदान में थे? 1999 में 1999 में पीडीपी बनी, उसके बाद अल्ताफ साहब सियासत से वाबस्ता हुए। वो जो वाक़ा
का जिक्र करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या उनके वो तर्जुमान साहब, तो वो उस साल के 20 साल की बात है 20 साल बाद की बात है। तो उस वक्त अल्ताफ साहब तो थे ही नहीं सियासत में, इन्होंने जो भी बता दिया ये बिल्कुल झूठ है। पान पीडीपी वीरेंद्र सिंह सोनू ने बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वाकई एक ऐसे मकाम पर पेश आया जहां कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन के अपनी कॉलोनी बनाई जा रही है। इससे इस जगह की सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। गुरमीत सिंह की आला सतही तहकीकात बर वक्त शुरू की जानी चाहिए। कोई एहलकार मुत्तफी के लवाकिन से मिलने नहीं गया। उन्होंने बारामूला की अक्सरियती बरादरी का शुक्रिया अदा किया जो मुत्तफी खानदान के साथ खड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी, सरकार की तरफ से एक प्रपोजल है 1 नेशन 1 इलेक्शन, पीडीपी कैसे देखती है? देखिए, ऐसे कि जो सरकार को करना चाहिए उसके ऊपर तो सरकार गौर नहीं करती। सबसे बड़ा देश का मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा देश का मुद्दा महंगाई है। चाइना हमारे इलाकों में एंटर हो गया, आपने कभी देखा सरकार के उसके ऊपर बात करती होगी? तो आज ठीक है, अब ये मैंने सुना है, पता नहीं वो क्या खरड़ा है, क्या जाना चाहते हैं, जब वो आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं जिन चीजों के लिए इनको मैंडेट मिला था पिछले 10 साल से, उन पे एक भी काम पे इन्होंने काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ा आप मुझे बताइए, 250 रुपए किलो खाने वाला तेल है, सिलेंडर 1400 रुपए क्रॉस कर चुका है, बेरोजगारी दर आप देख लीजिए कहाँ है। और सबसे बड़ा एक जुमला इन्होंने किया था 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आना था, 2014 में आना था, तब तो डबल हो जाना चाहिए, 30 लाख हो जाने को बैंक में एफडी की होती 2 साल बाद, डबल हो जानी 7 साल बाद। तो वो पैसे दो हमें जो आपने वादा हमारे साथ किया था। अब ये चीजें लाने से मुझे पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। और बाकी एक बात और है, इसके ऊपर बीजेपी या सरकार से पूछना चाहता हूं, जिनके 4 महीने पहले इलेक्शन हुए स्टेटों के, वहां लाखों करोड़ों रुपए सरकार का लगा है इलेक्शन करवाने में, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? वो कहां जाएंगे? वो लोगों का मैंडेट का, चलो जब ये आ जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन जिन चीजों के लिए सरकार के पास मैंडेट था उसके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहिए। सिख रहनुमा और साबिक एमएलसी चरणजीत सिंह खालिसा ने अनजहानी इंजीनियर गुरमीत सिंह की पुरअसरार मौत को लेकर श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चरणजीत सिंह खालिसा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम और गुरमीत के अहल खाना इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार को इस मामले में आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि गुरमीत की पुरअसरार मौत का पूरा खुलासा हो सके। साहब के दफ्तर गया, वो नहीं थे तो वो साइड पर थे, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे, वहाँ पर मैंने उनसे मुलाकात की। एसएसपी साहब ने मुझे ये बात कही कि भाई अच्छे है कि ये केस मैंने क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है, इसकी एफआईआर क्राइम ब्रांच में भी हमने करवा दी है। और साथ में इनका जो ऑफिस है वो मैंने सील कर दिया है, और जितनी इनके साथ फाइलें वाबस्ता हैं वो हमने उठाकर सीज कर दी है। और हमने जो नेवी की टीम मंगाई है वो ढूंढी है। मेरे खड़े खड़े वहां पर नेवी वाले भी आ गए जो आ रहे थे, उन कहा हमने देखा है। उन्होंने पूछा भाई बेड कैसा, उनका बेड क्लियर है। उन्होंने कहा भाई बाकी भाई थोड़ा रह गया है, वो सुबह देखेंगे तो हो सकता है वहां से मिल जाए। तो सुबह हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है। हम कमीशन में भी आए, जहाँ वहां पर सारे 12 मुल्क के जो सिविल सोसाइटी के लोग थे पहुंचे हुए थे। मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों का भी बड़ा धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जो कम्युनल हारमोनी बनाकर रखी वहां पर। उन्होंने कहा जो पाप है, जो गलत चीज है, उसके साथ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए, और जिसने ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, जिन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी को भी कंट्रोल किया है। इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं, और हॉनेस्टी भी है। जो एसपी साहब मुझे लगे अच्छे हॉनेस्ट टाइप से आदमी हैं। लेकिन जो लोगों की दिल में शंका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, हिंदू भाई हो, पंडित भाई हो, वो कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी, खालसा जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सरकार में, आपकी सरकार है, आप बीजेपी में संबंध रखते हो, तो इसकी जो इंक्वायरी है सीबीआई की तरफ। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। जिला रामबन शहद की मक्खियों के पालने के लिए एक बड़ा मरकज है और बनिहाल के इलाकों में सुलई के फूलों से शहद की मक्खियों की तरफ से तैयार किए जाने वाले सुलई शहद को जीआई टैग मिल गया है। जिला रामबन में 477 अफराद शहद की मक्खियों के कारोबार से बराह रास्त जुड़े हैं और इन अफराद के पास अतालवी और यूरोपीय शहद की मक्खियों की 35,500 कॉलोनियां मौजूद है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जिला रामबन के 1200 से जायद किसान हिंदुस्तानी एशियाई मक्खियों की परवरिश में भी मुलविस है और हर किसान ने औसतन 7 से जायद कॉलोनियां रखी हुई है। शहद की मक्खियों और शहद के कारोबार से जुड़े लोगों और महकमे एग्रीकल्चरल और एपीकल्चर की मेहनत का नतीजा है कि जिला रामबन में शहद की सालाना पैदावार औसतन 6,000 क्विंटल है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर अयाज अहमद रेशी का कहना है कि हमारे पास सर्विसेज मल्टीफ्लोरा सुलाई और दीगर जंगली नबातात मौजूद हैं। दावा है कि सुलाई का अरक हाई ब्लड प्रेशर, बुखार और दांत के दर्द के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फितरत के लिहाज से सुलाई का पौधा जंगली दवाओं का पौधा है और इसके फूलों से पैदा होने वाला शहद नामियाती या ऑर्गेनिक और मुफीद होता है। सुलई से पैदा होने वाला शहद, सुलई एक हर्ब है और इसे जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो इससे एक्सट्रैक्ट करती हैं इसके नेक्टर को, तो उसको जमा करके हमारे सामने शहद की सूरत में पेश करती हैं। और यहाँ ये मुख्तलिफ प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं। जीआई टैगिंग मिलने के बाद बहुत खुश हैं सब। खुशी की बात यह है कि 2 दिन पहले इस सुलई हनी में हमें एक जो एजाज मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जीआई टैगिंग इंडिकेशन, और जिससे हमारा जो ये सुलई हनी है हमारे बी कीपर से इनको 2 से 3 गुना तक फायदा हो सकता है। इनका जो मार्केट वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू, वो खुद ही खुद बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये अवार्ड दिया है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो ये सुलई प्लांट है, सुलई ये तो सिर्फ बानिहाल बेल्ट में ही मिलता है और इसकी जो मिठास है वो तो दूर दूर तक फैल चुकी है। और इसके लिए मैं वोट ऑफ थैंक्स करना चाहती हूँ एलजी मनोज सिन्हा को जिन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद की, और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, डीसी साहब रामबन के, और डायरेक्टर एग्रीकल्चर के, और चीफ एग्रीकल्चर, और हमारे साथ मौजूद है एपीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर के। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये सपना देख रहा हूं कि यह हकीकत है। अगर ये पॉसिबल है तो इसमें हमारे सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो हमने महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी सर को जाता है, जिसने एक कंसेप्ट डेवलपमेंट किया था कि अपने अपने इलाकों की जो भी स्पेशलिस्टी है तो हम आपको एज ए एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। तो इस रामबन में जो सबसे बेस्ट चीज़ बनती है जिससे रामबन की एक पहचान थी वो थी हनी। तो इस हनी को अगर किसी ने आइडेंटिफाई किया वो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। हम यूनिवर्सिटी का भी थैंक यू करते हैं जो मुस्लिम ने अपना रोल अदा किया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें हमारे डी साहब का बड़ा रोल है, तो मैं सबका इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक अच्छा मतलब जनरेट एम्प्लॉय जिसको बोलेंगे हम, वो एक काम है। इसमें अच्छा बेनिफिट भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन हम इस चीज़ को पहले मद्देनजर रखें कि 1 साल 2 साल में जो हमारा डॉट होते हैं, क्रॉप्स डॉट हो गए, उससे थोड़ा बैकलॉग हुआ, लेकिन हमें डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट मिला उस काम में और इन्होंने इसको आगे चलाया। हम और भी दावत देते हैं लड़कों को। जो जीआई टैग इसमें मिला है तो काफ़ी खुशी का माहौल है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, चाहे वो बनिहाल जुमरा आ जाए या डिगडोल वगैरह मिले जाए, जहाँ से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सुलई। तो बी कीपर्स भी काफ़ी खुश है। खुश इसलिए है कि इसको जियो टैग मिला है, अच्छे रेट्स मिलेंगे, अच्छे दाम मिल जाएंगे, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक मार्केट हो, हर जगह पे इसका अच्छा एक वैल्यू मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इंडिया गवर्नमेंट ने इसमें जियो टैग में लाया है। खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जगह जगह जाते थे, अक्सर उनके प्रोग्राम मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं कि आप बी कीपिंग स्टार्ट करो, छोटे से जगह, छोटा काम और कम पैसे लग जाएंगे इस पे और आपका रोजगार चलेगा। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार। अब जो सुलई का जो निकलने वाला शहद है, जिससे जो शहद बनता है, तो उसकी मार्केटिंग में अब मज़ीद 4 चांद लगने का इम्कान है। और ये जो इससे जुड़े बहुत सारे किसान हैं, ज़मींदार लोग हैं, बी कीपर्स हैं, तो उनको जो नज़र आ रहा है कि आगे जो इनका जो ये फील्ड होगा मज़ीद जो इनको कामयाबियाँ हासिल होंगी और आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो मसाइल हैं, इनके जो मुश्किलात हैं, उन्हें हल किया जाए, फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि इनके जो ये लाइव स्टॉक होता है, जब ये शिफ्टिंग होता है, इसको कोई मुश्किलात और मसाइब का सामना न करना पड़े।
मैं मोहम्मद तस्कीन न्यूज़ 18 के लिए बानीहाल से। क्यारपुरा कुपवाड़ा के ब्लॉक ऑफिस में अवामी नुमाइंदों ने डीडीसी चेयरमैन की सदारत में खामोश एहतजाज किया। एहतजाज में इलाके के सरपंचों ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अकबर ने कहा कि ब्लॉक ऑफिस क्यारपुरा में 20 अवामी नुमाइंदे डीडीसी मेंबरान के हमरा अपने ओहदे से इस्तीफा पेश करेंगे। फाल सभी मेंबरों का काम छोड़ हड़ताल शुरू किया गया है। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से भी तिब्बी सहूलियात के हवाले से तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर राज्यसभा मेंबर ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने तिब्बी ढांचे को काफी बेहतर किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और हम प्रैक्टिकली आज आपके पुलवामा ज़िला में देखने आए थे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड पे कि नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने और यहाँ के जो इनका स्टाफ था, और हम मरीज़ों से भी मिले, लेकिन थोड़ा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। सैनिटेशन वाशरूम थोड़ा, और इन्होंने नई बिल्डिंग्स में कोई सीपेज की भी बात करी है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि वो जल्दी करें। पापोर में मौजूद टांचा बाग जरूरत है, इसको लाइटिंग की ज़रूरत है, इसको फेंसिंग की भी ज़रूरत है, और इसमें जो कुर्सियों की जो जैसे हमारे बाकी स्टेडियम में कुर्सियां बनाए लोगों को मैच देखने के लिए, वो लगाने की जरूरत। उधमपुर के महकमे बागवानी ने जिले के 50 से ज्यादा किसानों के लिए RS पूरा जम्मू में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी चकरवही के तालीमी इदारे का एहतमाम किया। इस दौरे का मकसद मकामी किसानों को बागबानी की जदीद तरीन मालूमात और तकनीकों से वाकिफ कराना है। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 50 फार्मर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो एक मेगा फ्रूट पार्क जा रहे हैं RS पुरा में। तो एक अच्छा एक्सपोजर विजिट रहेगा और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर किसान जितना स्किल ले सकता है उतना ले, ताकि इनका मैक्सिमम रिटर्न हो और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी रहे। तो नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।